ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਬੇਟਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਬਾਊਟ ਹੀਟ ਐਂਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਵੇਰੀਅਸ ਸਕੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਕੇਲ, ਫਾਰਨਹੀਟ ਸਕੇਲ, ਰਿਊਮਰ ਸਕੇਲ ਐਂਡ ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਲ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਨਾਓ in this video we are going to study about our next topic, that one is thermal expansion. Thermal word deals with heat, है ना। Thermal word deals with heat ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ थर्मल, है ना। एक्सपेंशन मतलब एक्सपैंड होना, एक्सपैंड ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। that phenomena is known as thermal expansion. On heating a substance it will expand. That phenomena is known as thermal expansion. ਇਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੈਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਫੈਲੇਗੀ। that phenomena is known as thermal expansion, ठीक है। क्यों फैलती है, what is the cause of expansion, cause of expansion, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਐਟਮਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਟਮਸ ਹੈ ਦੇ ਸਟਾਰਟਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਐਟਮਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਸਟਾਰਟਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਬੇਟਾ, ਲਿਸਨ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ goes on increasing, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ goes on decreasing, ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ ਨਾ, ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਫੈਲੇਗਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੈਕ ਜੈਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੋਟਲ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬੋਟਲ ਦਾ ਨੈਕ, ਢੱਕਣ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਮ,
ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨੈਕ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਹੌਟ ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ, ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਡਿਪ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਢੱਕਣ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹੋਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕਰਿਊ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਕਰਿਊ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਜ਼ੀਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਹੀਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨੈਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਮਿਲੀ, ਹੀਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਐਂਡ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਲਸ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਨਾ ਐਵੇਂ ਢਿਲਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਸਲੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਲੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਢਿਲਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਹੀਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਸਮਝ ਗਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਹੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ, ਦੈਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਜ਼ ਆਫ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਓਕੇ। ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ 3 ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਥਰਮਲ expansion is of 3 types। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਊਬਿਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਓਨਲੀ increase in length, that expansion is known as linear expansion। ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਏਰੀਆ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਓਨਲੀ increase in surface area, then that expansion is known as superficial expansion। ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, increase in volume, that expansion is known as cubical expansion। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। So what is linear expansion? In which there is only increase in length of the body on heating। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਲੈਂਥ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਓਨਲੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਦੈਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਉਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਦੀ ਰੋਡ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ L। ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1, ਐਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T1 original length of rod L। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਗਰਮ ਕੀਤਾ। ਹੀਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਗਈ।
ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਬਣ ਗਈ L ਡੈਸ਼। ਨਿਊ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੋਡ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, L ਡੈਸ਼ ਚੋਂ L ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, L ਡੈਸ਼ ਚੋਂ L ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ L ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ L, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਡੈਲ L। ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, T2 ਮਾਈਨਸ T1, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਡੈਲ T। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਵਟ ਇਜ਼ L, ਵਟ ਇਜ਼ L ਡੈਸ਼, ਵਟ ਇਜ਼ ਡੈਲ L, ਵਟ ਇਜ਼ ਡੈਲ T। ਵਟ ਇਜ਼ L, ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ, L ਡੈਸ਼ ਨਿਊ ਲੈਂਥ, del L change in length। L is original length, L dash is new length, del L is change in length and del T is change in temperature। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ del L ਹੈ, listen, wait a minute, yes, ਜਿਹੜਾ ਇਹ del L ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਦੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਬੋਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਰੋਡ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰੇਗੀ ਮਿਲੀਮੀਟਰਸ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਸ ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ 'ਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ 'ਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਰੋਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ 'ਚ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੁਛ ਮੀਟਰਸ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਮੀਟਰਸ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਛੋਟੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਛੋਟੀ ਬੋਡੀ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ del L ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ। ਐਂਡ ਘੱਟ ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਉਨੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਘੱਟ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ del L ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ L ਇੰਟੂ del T। ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ। ਅਲਫਾ ਬੇਟਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਫਾ ਦਾ ਸਿੰਬਲ, ਜਿਵੇਂ A ਹੁੰਦਾ ਬਸ A ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੋਲ A ਪਾਓ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਅਲਫਾ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਐਵੇਂ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਬੇਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਲਫਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ coefficient of linear expansion। alpha is known as coefficient of linear expansion। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅਲਫਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅਲਫਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਕੋਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕੋਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਲਈ, ਐਂਡ ਕੋਪਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਲੋਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਲੋਕ, ਰੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ, ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ, ਐਂਡ ਬਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ। ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਪਰ ਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਲਫਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅਲਫਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਅਲਫਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਡ ਲੈ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਕੋਪਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਲਫਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਰੋਡ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਲਫਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਅਲਫਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅਲਫਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਲਫਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕੋਪਰ ਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਅਲਫਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਅਲਫਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
एंड देखो डेल एल ते अल्फा का रिलेशन थोड़ा की लग रहा है, डायरैक्ट लग रहा है ना बेटा। दैट मीनस जिस मटीरियल का अल्फा ज़्यादा होएगा वो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, जिस मटीरियल का अल्फा ज़्यादा होएगा वो मटीरियल ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, जिस मटीरियल का अल्फा घट होएगा वो घट एक्सपैंड करेगा। मतलब अल्फा की वैल्यू तो थोड़ा की पता चलेगा बेटा, अल्फा की वैल्यू तो थोड़ा की पता चलेगा भी किहड़ा मटीरियल ज़्यादा एक्सपैंड होंदा है, किहड़ा मटीरियल घट एक्सपैंड होंदा है, किस दी लेंथ ज़्यादा चेंज होएगी, किस दी लेंथ घट चेंज होएगी, वो अल्फा की वैल्यू तो पता चलेगा। जिस मटीरियल के अल्फा की वैल्यू लार्ज होएगी है ना, जिन्नी अल्फा की वैल्यू लार्ज होएगी है ना, उस मटीरियल च उन्नी एक्सपेंशन ज़्यादा होएगी, उन्नी उहदी चेंज इन लेंथ ज़्यादा होएगी। क्लीयर। तो अल्फा मटीरियल दी अल्फा की वैल्यू तो तुसी अंदाज़ा लगा सकते हो भी वो मटीरियल घट एक्सपैंड होएगा कि ज़्यादा एक्सपैंड होएगा। ठीक है, ये फार्मूले नाल तुसी मटीरियल की चेंज इन लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। चेंज इन लेंथ इस एक तो मटीरियल का अल्फा बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एक हैगी ओरिजिनल लेंथ, एक है चेंज इन टैंपरेचर। हुण जिवें आपां नूं पता है, देखो आपां नूं पता है एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू डेल एल हुंदा है ना, ये पिक कर लो, एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू डेल एल की वैल्यू है ना, जो आ डेल एल की वैल्यू है आ वाली, ये डेल एल की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल टी। एल उधर ले जाओ, उधर ही साइड ले जाओ, एल डैश इज इक्वल टू एल, इधर माइनस का सी इधर आके प्लस का हो गया, अल्फा एल डेल टी, दोनों चो एल कॉमन कर लो, एल कॉमन 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये न्यू लेंथ का फार्मूला बन गया बेटा। ये फार्मूला है चेंज इन लेंथ का, भी कितनी लेंथ चेंज होएगी, चेंज होकर नवी लेंथ कितनी बन जाएगी, ये न्यू लेंथ का फार्मूला बन गया। इस एल इज ओरिजिनल लेंथ है ना, अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड डेल टी इज चेंज इन टेम्परेचर है ना। ये तीन वैल्यूज अगर पता नहीं तो असं न्यू लेंथ फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, अच्छा हुण अल्फा की यूनिट्स आप डिस्कस कर लें, अल्फा की डेफिनेशन डिस्कस कर लें, पहले यूनिट्स डिस्कस कर लें बेटा, यूनिट्स है ना। डेल एल का फार्मूला है अल्फा एल डेल टी, इतों अल्फा का फार्मूला बन जाएगा डेल एल बाय एल डेल टी है ना बेटा। डेल एल नहीं विजिबल है थोड़ा, वेट अ मिनट, डेल एल का फार्मूला अल्फा एल डेल टी होंगे एंड अल्फा का फार्मूला डेल एल बाय एल डेल टी। डेल एल है ना, जो डेल एल है चेंज इन लेंथ यूनिट्स होंगे ने मीटरस, ये भी लेंथ है, ये यूनिट्स भी मीटरस, टैंपरेचर के डिग्री सैल्सियस, मीटरस नाल मीटरस कैंसल, ये बन जाएंगे पर डिग्री सैल्सियस। अल्फा के यूनिट्स पर डिग्री सैल्सियस या पर कैलविन, या अल्फा पर डिग्री सैल्सियस मेजर होएगा या अल्फा मेजर होएगा पर कैलविन, ये अल्फा के यूनिट्स हो गए। ठीक है बेटा, दीज आर द यूनिट्स ऑफ अल्फा। अल्फा का डिमेंशनल फार्मूला बनाना है, डिमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा, डेल एल का एल, लेंथ का एल, टैंपरेचर का के होंगे, याद है कि नहीं याद। टैंपरेचर का डिमेंशनल सिंबल के होंगे, एल नाल एल कैंसल, के -1 इज द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा। अल्फा का डिमेंशनल फार्मूला के -1 होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा अल्फा की डेफिनेशन ऑफ अल्फा, डेफिनेशन ऑफ अल्फा आपां नूं पता है डेल एल का फार्मूला अल्फा एल डेल टी है, देयरफॉर अल्फा का फार्मूला डेल एल बाय एल डेल टी नीचे लिया है ना। अगर एल 1 होवे डेल टी 1 होवे दैन अल्फा इज इक्वल टू डेल एल आ जाएगा, इस पुट करके एल भी 1 पुट कर दो, डेल टी भी 1 पुट कर दो, अल्फा इज इक्वल टू की आ जाएगा डेल एल। हुण उरो डेफिनेशन बनाओ बेटा, उरो एल भी यूनिट ले ली, यूनिट डेल टी भी यूनिट ले लिया, then alpha is equal to del L. What is alpha? Alpha is temperature, sorry, coefficient of linear expansion है ना। अल्फा may be defined as अल्फा किस दे इक्वल है, चेंज इन लेंथ
may be defined as change in length, change in length हो गया, पर लेंथ कितनी लेनी है, यूनिट लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। डेफिनेशन मान लो, देखो ध्यान नाल देखो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन मे बी डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। बस आही तो मैंने बोला, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन may be defined as change in length per unit original length पर, है ना, यूनिट, देखो पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। सो ये डेफिनेशन बन गई बेटा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की। ओके, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में बी डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, है ना। ये अल्फा दी डेफिनेशन होगी, अल्फा दे यूनिट्स हो गए, अल्फा दा डायमेंशन ऑफ फार्मूला हो गया, न्यू लेंथ का फार्मूला हो गया, चेंज इन लेंथ का फार्मूला हो गया, चेंज इन लेंथ का। ये सारा आपने लीनियर एक्सपेंशन में बेटा डिटेल च डिस्कस कर लिया। दिस इज अबाउट लीनियर एक्सपेंशन। तो बेटा जिमें आपने लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक डिस्कस किया है ना, एवं ये टॉपिक है सुपरफिशियल एक्सपेंशन का। इस आपने लेंथ डिस्कस की है, उस आप डिस्कस करांगे, हाँ हाँ बोलो, उस की डिस्कस करांगे आप एरिया, उस एरिया लवांगे। तो अपने को सैकेंड कंसैप्ट है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। ऑन हीटिंग if there is only increase in surface area, हीट करन ते अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, then expansion is known as superficial expansion। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपने को एक शीट है, एट टेम्परेचर T1 ओरिजिनल सरफेस एरिया S, ओरिजिनल सरफेस एरिया S है, हीट कितना है, ऑन हीटिंग टेम्परेचर चेंज हो गया, थोड़ा एक्सपैंड कर गई, एरिया चेंज हो गया, S डैश हो गया, न्यू सरफेस एरिया इज S डैश। ओरिजिनल सरफेस एरिया S है, हीट करन ते शीट एक्सपैंड होगी, नवा सरफेस एरिया कितना हो गया S डैश। तो बेटा चेंज इन सरफेस एरिया कितना होया, चेंज इन सरफेस एरिया, न्यू सरफेस एरिया चो ओरिजिनल सरफेस एरिया माइनस कर दूंगे, आ जाएगा डेल एस। चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 डेल टी। तो बेटा जिमें लेंथ का कंसैप्ट सीगा ना, हाँ देखो आ लेंथ का कंसैप्ट सीगा भी छोटी बॉडी घट एक्सपैंड होंदी है, वड्डी बॉडी ज़्यादा एक्सपैंड होंदी है ना। घट गर्म करोगे घट एक्सपेंशन होएगी, ज़्यादा गर्म करोगे ज़्यादा एक्सपेंशन होएगी। यही कंसैप्ट सेम इत्थे लग जाएगा, सेम लगेगा, एरिया की फॉर्म च लगेगा, इन द फॉर्म ऑफ एरिया लगेगा, है ना। डेल एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, डेल एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। मतलब छोटी बॉडी है घट एरिया चेंज होएगा, वड्डी बॉडी का एरिया ज़्यादा चेंज होएगा। घट गर्म करोगे घट एक्सपेंशन होएगी, ज़्यादा गर्म करोगे ज़्यादा एक्सपेंशन होएगी। जिन्ना ज़्यादा गर्म करोगे उन्नी ज़्यादा एक्सपेंशन होएगी, समझ गए। इन्होंने दोनों फैक्टर्स में अगर असी कंबाइन कर दिए, डेल एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस डेल टी,
ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹਟਾ ਦੀ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਬੀਟਾ। ਉੱਥੇ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਅਲਫਾ। ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਬੀਟਾ। ਬੀਟਾ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ superficial expansion। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आ देखो अल्फा की सीगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਲਫਾ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਟਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਫਿशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੀਟਾ ਤੇ ਡੈਲ ਐਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬੀਟਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬੀਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਅਲਫਾ ਦੱਸਦਾ ਲੈਂਥ ਦੀ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ, ਬੀਟਾ ਦੱਸਦਾ ਏਰੀਏ ਦੀ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ। ਬੀਟਾ ਏਰੀਏ ਦੀ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬੀਟਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਬੀਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਲਫਾ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਲਫਾ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੋਡ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਬਲੋਕ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲਫਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਟਾ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਬੇਟਾ, ਬੀਟਾ ਵੀ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਬੀਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਬੀਟਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਬੀਟਾ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬੀਟਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਸੈਪਟ ਅਲਫਾ ਦਾ ਉਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਬੀਟਾ ਦਾ। ਬਸ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਲਫਾ ਲੈਂਥ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਐਂਡ ਬੀਟਾ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਊ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊ ਏਰੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਐਸ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਐਸ ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲ ਐਸ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਐਸ ਡੈਸ਼ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲ ਐਸ। ਐਸ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਡੈਲ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਬੀਟਾ ਐਸ ਡੈਲ ਟੀ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਐਸ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਓ, 1 प्लस बीटा डेल टी। ये न्यू एरिया का फार्मूला बन गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ न्यू एरिया। ये न्यू एरिया का फार्मूला है। ये चेंज इन एरिया का फार्मूला है बेटा, कितना एरिया चेंज होएगा, ये न्यू एरिया का फार्मूला है। ठीक है। अच्छा यूनिट्स एंड डिमेंशनल फार्मूला अल्फा एंड बीटा का सेम है। पर डिग्री सेल्सियस पर कैलविन डिमेंशनल फार्मूला के -1 सेम है। जो डिमेंशनल फार्मूला जो यूनिट्स अल्फा दे ने वही बीटा दे ने। क्लीयर। हुण बीटा की डेफिनेशन ऑफ बीटा, डेल एस का फार्मूला बीटा एस डेल टी। इतों बीटा का फार्मूला बन गया डेल एस बाय एस डेल टी। अगर एस 1 हो डेल टी 1 हो दैन बीटा इज इक्वल टू डेल एस आ जाएगा। इफ एस इज इक्वल टू 1 डेल टी इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू डेल एस। ओमी डेफिनेशन बन जाएगी। व्हाट इज बीटा, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन may be defined as, बोलो may be defined as change in surface area, change in surface area per unit surface area per unit original surface area per unit change in temperature, change in temperature। आ देखो coefficient of superficial expansion may be defined as change in surface area per unit original surface area per unit change in temperature, है ना बेटा। इतों डेफिनेशन बन जाएगी coefficient of superficial expansion। आलमोस्ट अल्फा एंड बीटा सेम चीज़ा ने, बस अल्फा लेंथ बारे दसदा है, लेंथ की एक्सपेंशन भी लेंथ की एक्सपेंशन कितनी होएगी, बीटा एरिया की एक्सपेंशन दसदा है। ठीक है। एंड नाउ कम टू थर्ड वन। थर्ड वन इज क्यूबिकल एक्सपेंशन।
cubical expansion. On heating, if there is only increase in volume of body ਦਾ ਸਿਰਫ ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ, then that phenomena is known as cubical expansion. बेटा कल्ली लेंथ का चेंज होना लीनियर एक्सपेंशन, कल्ले एरिया का चेंज होना सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कल्ले वॉल्यूम का चेंज होना क्यूबिकल एक्सपेंशन, है ना। आप इलेक्ट कर लो अपने कोल कोई ब्लॉक है हैविंग वॉल्यूम V1 at temperature T1, original volume ऑफ बॉडी। ब्लॉक लेट करना है ब्लॉक लेट कर लो, सफीयर लेट करना है सफीयर लेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सफीयर कोई दिक्कत नहीं। हीट किया, हीट करन ते ये भी एक्सपैंड हो जाएगा, ये भी एक्सपैंड हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होके बन गया ओरिजिनल वॉल्यूम V लेट करो बेटा, ओरिजिनल वॉल्यूम V एंड चेंज होके बन गया V डैश, चेंज होके बन गया V डैश। At temperature T1, original volume of the body is V and on heating, heat करन ते temperature भी change हो गया and new volume becomes V dash। तो बेटा कितना वॉल्यूम चेंज होया, चेंज इन वॉल्यूम V डैश माइनस V डेल V। कितना टेम्परेचर चेंज होया, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 डेल T, है ना। तो वही कंसैप्ट लगेगा बेटा, जेड़ा चेंज इन वॉल्यूम है ओरिजिनल वॉल्यूम के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज इन टेम्परेचर के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब डेल एल एल के प्रोपोर्शनल होंगे, डेल एस एस के प्रोपोर्शनल होंगे एंड डेल वी वी दे प्रोपोर्शनल। मतलब छोटी बॉडी, अगर बॉडी छोटी है तो घट एक्सपैंड करेगी, अगर बॉडी वड्डी है तो ज़्यादा एक्सपैंड करेगी। घट गर्म करोगे घट एक्सपेंशन आएगी, ज़्यादा गर्म करोगे ज़्यादा एक्सपेंशन। सेम कंसैप्ट है बेटा जो तीनों ते मैं अप्लाई कर रहा, है ना, सेम कंसैप्ट है। छोटियां बॉडीज़ घट एक्सपैंड होंदियां ने, वड्डियां बॉडीज़ ज़्यादा एक्सपैंड होंदियां ने। घट गर्म करोगे घट एक्सपेंशन होएगी, ज़्यादा गर्म करोगे ज़्यादा एक्सपेंशन होएगी। क्लीयर, इन्हां दो फैक्टर्स नूं कंबाइन करांगे, डेल वी is directly proportional to V del T। प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाओगे कांस्टेंट लग जाएगा गामा, गामा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, अल्फा थोनू दसदा लेंथ बारे, बीटा थोनू दसदा एरिया बारे एंड गामा थोनू दसदा वॉल्यूम बारे। जिस मटीरियल का गामा घट होएगा उसका वॉल्यूम घट चेंज होएगा, जिसका गामा ज़्यादा होएगा उस मटीरियल का वॉल्यूम ज़्यादा चेंज होएगा। डायरैक्ट रिलेशन है बेटा। मतलब जिस मटीरियल के अल्फा बीटा गामा लार्ज होणगे वो मटीरियल ज़्यादा एक्सपैंड होंदा है, जिस मटीरियल के अल्फा बीटा गामा स्मॉल होणगे वो मटीरियल्स घट एक्सपैंड होंगे। एक मटीरियल का गामा कॉन्सटेंट रहेगा, डिफरेंट मटीरियल्स का गामा डिफरेंट होएगा, है ना। कॉपर है, कॉपर की चाहे रॉड है चाहे ब्लॉक है चाहे शीट है, वह गामा कॉन्सटेंट रहेगा। एक रॉड कॉपर दी है, एक रॉड अलमीनीयम दी है, कॉपर की रॉड का गामा अलग होएगा, अलमीनीयम की रॉड का गामा अलग। डिफरेंट मटीरियल्स का गामा डिफरेंट, एक मटीरियल का गामा कॉन्स्टेंट। क्लीयर। तो न्यू वॉल्यूम का फार्मूला बना लें, आपां नूं पता है V डैश माइनस V इज इक्वल टू डेल V है, V उधर ले जाओ, डेल V की वैल्यू पुट कर दो, डेल V की वैल्यू गामा V डेल T, V दोनों चो कॉमन आ जाएगा। ये बेटा न्यू वॉल्यूम का फार्मूला बन गया। यूनिट्स अल्फा बीटा गामा दे यूनिट्स सेम, डिमेंशनल फार्मूला भी सेम। जो यूनिट्स अल्फा दे ने उही बीटा दे ने उही गामा दे होणगे पर डिग्री सैल्सियस या पर कैलविन। डिमेंशनल फार्मूला भी K-1।
ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਗਾਮਾ ਦੀ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਾਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਡੈਲ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਗਾਮਾ ਵੀ ਡੈਲ ਟੀ, ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲ ਵੀ ਬਾਈ ਵੀ ਡੈਲ ਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਵੀ 1 ਹੋਏਗਾ, ਡੈਲ ਟੀ 1 ਹੋਏਗਾ, ਦੈਨ ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲ ਵੀ। ਜੇ ਵੀ 1 ਹੈ, ਡੈਲ ਟੀ 1 ਹੈ, ਉਦੋਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਵਟ ਇਜ਼ ਗਾਮਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ cubical expansion may be defined as change in volume, change in volume per unit original volume, per unit original volume, per unit change in temperature, per unit change in temperature. Coefficient of cubical expansion may be defined as change in volume per unit original volume per unit change in temperature। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬੇਟਾ। ਤਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ, ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਕਿਊਬਿਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਸ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਲਿਸਨ, yes listen, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ 'ਚ। ਥਰਮਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ 3 ਟਾਈਪਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ? ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਕਰ ਲਈ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿਊਬਿਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਇਨ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਊਬਿਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਟਾ, ਕਿਊਬਿਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾਮਾ। ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਆਏਗੀ, ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ, ਵੋਲੀਅਮ 'ਚ ਵੋਲੀਅਮ ਆਏਗਾ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਈਜ਼ੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਨਿਊ ਲੈਂਥ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਊ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਨਿਊ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਰੀਜਨਲ ਵੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਆਏਗਾ 1 ਪਲੱਸ ਅਲਫਾ ਡੈਲਟੀ, 1 ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਡੈਲਟੀ, 1 ਪਲੱਸ ਗਾਮਾ ਡੈਲਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਇਨ ਲੈਂਥ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ ਦਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਵੋਲੀਅਮ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ। ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਯੈਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਬੀਟਾ, ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਕਿਊਬਿਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਫਾ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਲੈਂਥ ਨਾਲ, ਬੀਟਾ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਏਰੀਏ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਸਕੇਅਰ ਸ਼ੀਟ। ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਸਕੇਅਰ ਸ਼ੀਟ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈ, ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ L, ਓਰੀਜਨਲ ਲੈਂਥ L, ਓਰੀਜਨਲ ਏਰੀਆ S। ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ L ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਹੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ੀਟ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। length becomes L dash, areas becomes S dash. On heating
new length becomes L dash, new area becomes S dash। L dash किन्नी होएगी सानू आंदा फार्मूला आ सीगा L dash का फार्मूला 1 प्लस अल्फा डेल टी, 1 प्लस अल्फा डेल टी। एंड न्यू एरिया कितना होएगा बेटा सानू ਇਹਦਾ फार्मूला भी आंदा 1 प्लस बीटा डेल टी है ना। जिमें ओरिजिनल एरिया का फार्मूला लेंथ का स्केयर है उमें आप लिख सकते हैं न्यू एरिया इज इक्वल टू न्यू लेंथ का स्केयर। लिख सकते हैं बेटा ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल लेंथ का स्केयर, न्यू एरिया न्यू लेंथ का स्केयर, मतलब एस डैश इज इक्वल टू एल डैश का स्केयर। एस डैश की वैल्यू पुट करो वाली एस 1 प्लस बीटा डेल टी, न्यू लेंथ एल डैश की वैल्यू पुट करो वाली एल एल 1 प्लस अल्फा डेल टी। ठीक है बेटा, एस डैश की वैल्यू एस 1 प्लस बीटा डेल टी पुट करती, एल डैश की वैल्यू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी। एल डैश के उपर स्केयर सीगा तो स्केयर लगा के रखा। हूँ जो ये स्केयर है ये बेटा एल ते भी लगेगा तो इस ब्रैकेट ते भी लगेगा 1 प्लस बीटा डेल टी। ये स्केयर एल ते भी लग जाएगा ब्रैकेट ते भी लग जाएगा। ठीक है, एल स्केयर एंड एस इक्वल है। देखो एस इज इक्वल टू एल स्केयर तो आप एल स्केयर की जगह एस पुट कर दो एस। इत्थे यूज करांगे बी टी यूज बी टी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम मैं थोड़ा पहला भी दसी हुई है कई बार। 1 प्लस एक्स की पावर अगर एन है तो इनू 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। शर्त यह भी अगे 1 हो एंड एक्स काफ़ी समॉल हो। अगे कि हो 1 एंड एक्स काफ़ी की हो समॉल, फिर असी पावर नू अंदर मल्टीप्लाई कर सकते। इनू बी टी कहने। ये आप पहला भी बहुत बार डिस्कस की है। बी टी अप्लाई कर दो क्योंकि अगे 1 है एंड ये अल्फा काफ़ी समॉल। अल्फा बीटा गामा बेटा अल्फा बीटा गामा सॉलिड्स वास्ते काफ़ी समॉल होंगे ने। इन्हों की वैल्यू जो तुम न्यूमैरिकल्स देखोगे ना न्यूमैरिकल्स इन्हों की वैल्यू 0.0000013 है या कुछ होंगे। अल्फा भी बीटा भी गामा भी ये सारे समॉल होंगे ने बेटा। अल्फा बीटा गामा ऑल आर समॉल। तो अगे 1 है एंड अल्फा समॉल होने करके सारी टर्म समॉल हो जाएगी। तुम पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। एस नाल एस कट दो 1 प्लस बीटा डेल टी एंड इत्थे बी टी अप्लाई कर दो 1 प्लस 2 अल्फा डेल टी। पावर को अंदर एक्स नाल मल्टीप्लाई करता, 2 नू अंदर अल्फा नाल मल्टीप्लाई करता। हम देखो 1 नाल 1 कट्टा जाएगा बीटा डेल टी। वेट अ मिनट थोनू विजिबल नहीं होया। हाँ बीटा डेल टी इधर बच गया 2 अल्फा डेल टी। डेल टी नाल डेल टी कट्टा जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये रिलेशन बन गया बेटा। ਜਿਹੜਾ सुपरफिशियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है ये लीनियर एक्सपेंशन के कोफिशिएंट नालों ट्वाइस होता है। समझ आ गया। देखो ओरिजिनल लेंथ लीती सी, ओरिजिनल एरिया ले लिया सी, हीट करन ते न्यू लेंथ ले ली, न्यू एरिया ले लिया। जिमें ओरिजिनल एरिया होंदा ओरिजिनल लेंथ का स्केयर, न्यू एरिया होएगा न्यू लेंथ का स्केयर। न्यू एरिया पुट किया, न्यू लेंथ पुट की, उन्होंने वैल्यूज पुट की, थोड़ा सॉल्व किया, बी टी अप्लाई किया, रिजल्ट एवं हूँ आप ना रिलेशन बनाने बेटा। वेट अ मिनट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। ठीक है, अल्फा डील्स विद लेंथ, गामा डील्स विद वॉल्यूम। तो यह जी कोई चीज़ ले लो जिदा लेंथ एंड वॉल्यूम हो। एक सिंपल जी चीज़ क्यूब ले लो, क्यूब क्यूबिकल फिगर ले ली बेटा। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीन एल। ठीक है, तो let us consider a cube of
ओरिजिनल लेंथ L, ओरिजिनल वॉल्यूम V, वॉल्यूम जिहड़ा हुंदा दैट इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब दा क्यूब ऑफ साइड, तो जिहड़ा वॉल्यूम होएगा V दैट इज इक्वल टू L क्यूब। ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल लेंथ दा क्यूब। हीट किता, हीट करन ते न्यू लेंथ becomes L dash, new volume becomes V dash। L dash ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੋ, this is the formula for L dash, L into 1 plus alpha del T। new volume ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ V dash is equal to V 1 plus gamma del T। तो बेटा वैल्यूज पुट करते हैं, L डैश की वैल्यू पुट करती L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल टी, V डैश की वैल्यू पुट करती V इंटू 1 प्लस गामा डेल टी। तो बेटा जिमें ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल लेंथ का क्यूब है, तो सिमिलरली न्यू वॉल्यूम न्यू लेंथ का क्यूब होएगा। ओरिजिनल वॉल्यूम ओरिजिनल लेंथ का क्यूब, न्यू वॉल्यूम न्यू लेंथ का क्यूब। ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू सॉरी न्यू वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दो बेटा V 1 प्लस गामा डेल टी, है ना। लेंथ की L डैश की वैल्यू पुट कर दो L 1 प्लस अल्फा डेल टी, है ना। ये क्यूब L ते भी लग जाएगा, ये तो एज इट इज़ रहेगी साइड, देखो 1 प्लस गामा डेल टी वाली तो साइड एज इट इज़ रहेगी। ये वाला क्यूब L ते भी लग जाएगा, ब्रैकेट ते भी लग जाएगा, L ते भी लग गया ब्रैकेट ते। L क्यूब आ चैक करो, L क्यूब किस दे इक्वल है, V दे इक्वल है। असी L क्यूब की जगह की पा देंगे V 1 प्लस गामा डेल टी 1 प्लस BT यूज़ कर दो BT 3 अल्फा डेल टी। जिमें पिछले टॉपिक यूज़ की सी ना, अगे 1 है एंड अल्फा समॉल होंगे, पावर में असी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पावर में अंदर मल्टीप्लाई करता यूज़ BT, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर ली। V नाल V कट्टा जाएगा 1 प्लस गामा डेल टी 1 प्लस 3 अल्फा डेल टी, 1 नाल 1 कट्टा जाएगा, डेल टी नाल डेल टी कट्टा जाएगा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। दैट इज द रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा। तो बेटा रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा कर लिया, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा कर लिया। नाउ रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, है ना, या बीटा एंड गामा च वट इज़ द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा। हुण बिकॉज आपां नूं पता भी जिहड़ा बीटा है दैट इज़ इक्वल टू 2 अल्फा, तो इत्थों है ना, इत्थों अल्फा आ गया बीटा बाई 2 एंड गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, इत्थों अल्फा आ गया गामा बाई 3, है ना बेटा। उरो बीटा बाई 2 आ गया, उरो अल्फा आ गया गामा बाई 3, है ना। दोनों इक्वेट कर दो, इक्वेट, क्योंकि ये भी अल्फा की वैल्यू है, ये भी अल्फा की वैल्यू है, तो आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 भी होंगे, गामा बाई 3 भी होंगे। आ रिलेशन बन गया तीनों, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 भी होंगे, अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3 भी होंगे। जे तुसी होर सौखा याद रखना चाहते हो तो 6 नाल, नीचे 6 बनता ना, 6 नाल मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट 6 नाल, ये बन जाएगा 6 अल्फा, ये बन जाएगा 3 बीटा, ये बन जाएगा 2 गामा। 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा प्लस 2 गामा, दैट इज आल्सो द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, है ना बेटा। सो पेपर च अगर ये आंदा ना रिलेशन ड्राइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, भी अल्फा बीटा एंड गामा च रिलेशन ड्राइव करो, तो बेटा थोनों पहला अल्फा एंड बीटा का रिलेशन बनाना पड़ेगा आ वाला, फिर अल्फा एंड गामा का रिलेशन बनाना पड़ेगा, फिर आ बनाना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन की ना लेंथ कितनी रखनी है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का फिर सारा करियो, पहला बीटा एंड अल्फा का रिलेशन बनाइयो, गामा एंड अल्फा का बनाइयो, फिर यदा बनाइयो। अगर क्वेश्चन 1 नंबर का फिर शॉर्ट फॉर्म च कर दियो, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। एक छोटा जहा कंसैप्ट मैं थोड़ा होर दस, छोटा जहा बिल्कुल छोटा जहा ईजी है,
1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਔਨ ਡੈਂਸਿਟੀ। डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी के ऊपर टैंपरेचर का की इफेक्ट होता है, हीट का की इफेक्ट होता है बेटा। डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम होता है ऑन हीटिंग। ये थोड़ा पता है, वॉल्यूम गोज ऑन इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज होएगी, वॉल्यूम जो इंक्रीज होएगा तो डेंसिटी की होएगी बेटा, डिक्रीजेस। दैट मीनस हीट करन नाल डेंसिटी डिक्रीज होंदी है सबसटेंस की, ठीक है। हीट करन नाल वॉल्यूम इंक्रीज होंदा है, वॉल्यूम इंक्रीज होने नाल डेंसिटी डिक्रीज होंदी है, ठीक है। तो आप एक रिलेशन बना लें। हुण जिवें आपां नूं पता है ओरिजिनल मास एम है, ओरिजिनल वॉल्यूम वी है, ओरिजिनल डेंसिटी रो है, एंड रो का फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। ऑन हीटिंग, हीट किया, हीट करन ते न्यू मास, मास रिमेन्स सेम, न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीजिज। फार्मूला सानू आंदा है, तुहानू पढ़ा के हटे। मास रिमेन्स सेम, वॉल्यूम इंक्रीजिज, न्यू डेंसिटी ये सी फाइंड करनी कितनी होएगी। तो बेटा जिमें तुसी ओरिजिनल डेंसिटी का फार्मूला लिखा है मास अपॉन वॉल्यूम, न्यू डेंसिटी का फार्मूला न्यू मास अपॉन न्यू वॉल्यूम, मास रिमेन्स सेम, वॉल्यूम का फार्मूला वी 1 प्लस गामा डेल्टी, मास अपॉन लिसन, मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज, देखो मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, ओरिजिनल डेंसिटी, और मास अपॉन वॉल्यूम ओरिजिनल डेंसिटी 1 प्लस गामा डेल्टी। ये आ गया, नहीं दिखा थोनू, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम, जिमें आ देखो मास अपॉन वॉल्यूम ओरिजिनल डेंसिटी है बेटा, ओरिजिनल डेंसिटी, और में आ भी मास अपॉन वॉल्यूम की बन जाएगा बेटा, ओरिजिनल डेंसिटी। नीचे रह जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टी। इनू एवं लिख लो रो 1 प्लस गामा डेल्टी की पावर -1, क्योंकि जो असी डिनोमीनेटर तो कोई चीज़ न्यूमीनेटर च लेने तो पावर का साइन नैगेटिव हो जाता है। BT यूज़ करो, यूज़ BT बाइनोमियल थ्योरम, है ना। तो रो डैश का फार्मूला रो 1 प्लस आ पावर अंदर मल्टीप्लाई करती बेटा, रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टी। ये बेटा न्यू डेंसिटी का फार्मूला बन गया, रो डैश रो 1 प्लस माइनस माइनस गामा डेल्टी, है ना। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट डेंसिटी डिक्रीजेस, है ना। वॉल्यूम के फार्मूले च प्लस है बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेस, ये फार्मूले च माइनस है बिकॉज डेंसिटी डिक्रीजेस। ये न्यू डेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला बन गया, ठीक है बेटा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच।